بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج ایک بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال جو عربی ڈگری کے متعلق ہے کہ عربی عالم فاضل ڈگری کرنے کے بعد یا سند حاصل کرنے کے بعد کون سی ایسی ڈگری حاصل کریں جس سے عربی لیکچرار یا عربی پروفیسر یا عربی ٹیچر جو ہے لگ سکیں۔ یہ بہت ہی زیادہ تر سوال جو ہے جو دینی اسناد مدارس سے حاصل کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ پوچھ لیتے ہیں اور کچھ ذہن میں ہی رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ سب جو عالم فاضل کر چکے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ اس ڈگری کے بعد کیا کریں جس سے وہ عربی لیکچرار ٹیچر وغیرہ جو ہے لگ سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اس کی معلومات شیئر کروں، آپ مزید ایسے سوالات کیے تھے یا کچھ معلومات وہ میں نے ویڈیوز کی شکل میں شیئر کی ہے، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آئی بٹن میں بھی پلے لسٹ ہے، یا چینل پر جا کے سوالات و جوابات کے حوالے سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو بھی سوال کیے جاتے ہیں تفصیلی ویڈیوز ان پر میں بنا دیتا ہوں۔ باقی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے اوپر اگر مختصر ہوا تو جواب دے دوں گا یا پھر اس کے اوپر ویڈیو شیئر کر دوں گا۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عربی عالم فاضل کرنے کے بعد جو ہے کون سی ڈگری حاصل کریں جس سے عربی لیکچرار یا ٹیچر جو ہے وہ لگ سکیں، یعنی پروفیسر جو ہے یا ٹیچر جو ہے وہ لگ سکے۔ تو عربی عالم فاضل کرنے کے بعد اگر آپ عربی لیکچرار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی زبان کی اسپیشلسٹ کی ڈگری جو ہے وہ آپ کو حاصل کرنا پڑے گی۔ یہ ڈگری جو ہے مخصوص طور پر عربی زبان کے تعلیم اور تحقیق کے اصولوں پر مبنی ہوتی ہے۔ عربی لیکچرار بننے کے لیے آپ کو عربی زبان کی تفصیلی تعلیم جو ہے حاصل کرنا ہوتی ہے اور آپ کو عربی زبان کی تاریخ، ادب اور عرب ثقافت کے متعلق جو ہے مختلف پہلوؤں کو بھی معلوم کرنا ہوتا ہے اس پروگرام، یعنی عام طور پر اس پروگرام کو آپ ایم فل کہہ لیں، یعنی ایم فل جو ہے عربی میں آپ کر لیتے ہیں تو اس میں یہی چیزیں جو ہیں یعنی اسپیشلسٹ جو عربی میں ہوتا ہے وہ ایم فل ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے پروگرام میں اسپیشلسٹ جو ہیں انہی کو کرنے کے بعد آپ بن سکتے ہیں۔ تو اس وقت عربی میں جو ہے کافی سارے پروگرام آ چکے ہیں جن میں ایم فل کرائی جا رہی ہے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے، مختلف یونیورسٹیز میں مختلف پروگرام ہیں، ان کے متعلق آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ مزید میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو عربی کے جو مختلف شاخوں کے اوپر یا مختلف اسپیشلسٹ جو پروگرام کروائے جا رہے ہیں ان کے متعلق میں نے معلومات شیئر کی ہے، اگر وہ آپ جاننا چاہیں تو اس کا ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا، اوپر بھی آئی بٹن میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ڈگری مختلف تعلیمی اداروں میں موجود ہوتی ہے اور اس کی تعلیم کی مدت اور منصوبہ بندی مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر 2 سے 4 سال کی مدت ہوتی ہے، یعنی یہ ڈگری ایم فل جس کو کہہ لیں یہ عام طور پر جو ہے 2 سال سے لے کر 4 سال کی مدت میں ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر 2 سال میں ہی یہ پروگرام ہو جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، جس میں پہلے سال میں جو آپ نے تیاری کرنا ہوتی ہے، یعنی 2 سیمسٹر پہلے سال میں ہوتے ہیں، 2 سیمسٹر دوسرے سال میں۔ پہلے 2 سیمسٹر میں آپ نے کورس ورک ہوتا ہے، یعنی کورس ہوتا ہے، کتابیں، مضامین وغیرہ جو ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے اور معلومات جو ہے اکٹھی کرنی ہوتی ہے مختلف ذرائع سے۔ اور اس کے بعد دوسرے سال میں جو ہے 2 سیمسٹر جو ہوتے ہیں اس میں ایک تھیسیس لکھنا ہوتا ہے، یعنی ایک ریسرچ، اپنی ریسرچ کر کے ایک مقالہ جو ہے، ایک کتاب وغیرہ کہہ لیں، ایک رسالہ کہہ لیں، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کو آپ نے یونیورسٹی سے، سپروائزر سے جو ہے اپرووڈ کروانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کا قبول
हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आपको डिग्री जो है इशू की जाती है उस प्रोग्राम की। तो अगर आप एमफिल के मुतालिक जानना चाहते हैं कि एमफिल होती क्या है, किस तरह होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर एमफिल के मुतालिक वीडियोस देख सकते हैं। तो अरबी आलिम फाजिल के बाद अगर आप अरबी लेक्चरार बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपकी तालीम को मजीद तरक्की देने के लिए चंद इकदामात जो हैं वो मैंने चंद स्टेप में शुमार किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप उनको ज़हन में रख कर आगे जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं वो आप उनको मद्देनजर रखते हुए आगे तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप अरबी आलिम फाजिल कर लेते हैं उसके बाद आप सिर्फ टीचर जो होता है मतलब मैट्रिक लेवल तक या मैट्रिक से ऊपर इंटरमीडिएट लेवल तक यानी कॉलेज सतह तक, वहां तक अगर टीचर या प्रोफेसर जो होता है कॉलेज सतह तक, वो अगर आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं या उनकी ख्वाहिश रखते हैं या उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये है कि आप अरबी आलिम फाजिल की डिग्री लेकर इसके बाद आप इसको मास्टर के जो है इक्वल करवाएंगे या फिर आप इसकी बुनियाद पे दीनी असनाद की बुनियाद पे आप मास्टर करेंगे किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपकी मर्जी। तो अगर आप उसको इक्वल करवा लें बस वही काम आ जाएगी। इसके बाद आपने एक छोटा सा कोर्स होता है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है, अरबी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, वो तकरीबन 6 माह का कोर्स है, वो कर लीजिए और इसके बाद जो है आप जहाँ पर टीचर की असामी आए या आप टीचिंग करना चाहें वहाँ पर आप अप्लाई कर सकें। अब अरबी टीचर ट्रेनिंग के मुतालिक जानना चाहें कि वो प्रोग्राम जो है कैसे करना है, कहाँ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख लीजिएगा। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके बाद हम क्या करें कि हम लेक्चरार बन सकें, यूनिवर्सिटी लेवल के लेक्चरार जो है मतलब बैचलर प्रोग्राम में या मास्टर प्रोग्राम में जो लेक्चरार होते हैं वो, या इसके अलावा ऊपर वाले प्रोग्राम जो है उनमें लेक्चरार या टीचर जो है बनना चाहें तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए चंद मराहिल जो है मैं आपके साथ इकदामात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास मास्टर दर्जा होना चाहिए, यानी अरबी जबान की डिग्री जो है वो मास्टर दर्जा के बराबर होनी चाहिए, ये आपने लाजमी करना है। इससे आपकी अरबी जबान की मारिफत और तखस्सुस यानी स्पेशलिस्ट जो है इसमें इजाफी तरक्की हासिल होगी। तो इसके लिए क्या है वो मैंने बता दिया कि अगर आपने आलिम फाजिल किया है या आपने शहादतुल आलमिया किया है, ये जो कोर्स हैं इनको आपने इक्वल करवाना होता है मास्टर प्रोग्राम के, यानी मुआदला करवाना होता है, मसावी करवाना होता है। वो मसावी जो है वो आप करवा लीजिएगा तो फिर आपकी जो शहादतुल आलमिया की डिग्री है वो आपकी मास्टर के दर्जे के बराबर यानी MA के बराबर के दर्जे के शुमार होगी। इसके बाद आप अगला इकदाम उठा सकते हैं। तो इक्वल कैसे करवानी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। तमाम वीडियोस जो हैं वो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर वीडियोस ऑप्शन को सेलेक्ट करें या प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि क्या करना चाहिए, तो दूसरा काम ये आपने करना है कि मास्टर डिग्री होने के बाद आप तालीमी इदारों में जो है तदरीस दे सकते, तदरीस का काम जो है अंजाम दें, यानी मास्टर दर्जे के बाद आपको अरबी जबान की तदरीस के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अपनी खिदमत देने का मौका जो है वो मिलता भी है या फिर आपको वो मौका देना चाहिए या मौका हासिल करना चाहिए, यानी मास्टर दर्जा आपका हो गया। इसके बाद आपने अगला काम जो करना है वो ये है कि आपने तदरीस यानी टीचिंग यानी आपने पढ़ाना है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जहाँ पर भी आप लेक्चरार या जैसे बनना चाहें तो उस जैसे इदारे में आप टीचिंग करें, पढ़ाएं, तदरीस दें, दर्स दें, ताकि आपको तदरीस का या पढ़ाने का जो तजुर्बा है वो आपको हासिल हो जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये मास्टर डिग्री के बाद आपने ये काम लाजमी करना। फिर इसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो
असामी आती है, गवर्नमेंट की हो या चाहे प्राइवेट हो, तो वो तालीम के साथ साथ जो है तजुर्बा भी तकरीबन लाजमी ही मांगते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तजुर्बा आपके पास होगा तदरीस का, फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप जितना ज्यादा जो है स्पेशलिस्ट यानी स्पेशल डिग्री या तखस्सुसी इल्म जो है हासिल करना चाहते हैं तो पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। ये डिग्री जो होती है ये आम तौर पर डॉक्टर की डिग्री शुमार हो जाती है, यानी डॉक्टरी दर्जा जो है ये इसको शुमार किया जाता है। इससे आपकी तालीम की इल्मी बुनियाद जो है मजबूत होती है और आप तालीमी इदारों में असातिज़ा की तरह तदरीस भी कर सकते हैं। यानी मास्टर आपने सावज़र मदारिस से कर लिया, फिर उसको इक्वल मसावी भी करवा लिया। अब इसके बाद आपने एमफिल करना है, एमफिल 2 साल का है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आप पीएचडी कर लीजिए। तो अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो फिर आपके 99% जो है आपका चांस होता है कि आप असातिज़ा जहाँ पर अप्लाई करेंगे आपको वो असामी के ऊपर जो है मुंतखब कर लिया जाएगा। तो अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में बैचलर लेवल से लेकर पीएचडी या एमफिल पीएचडी ये जितने भी दर्जे हैं या जितने भी प्रोग्राम हैं इनमें अरबी के शोबे में आपको लेक्चरर जो है या सुपरवाइजर कह लें या प्रोफेसर समझ लें, ये आपको वहां पर मुंतखब किया जा सकता है अगर आप पीएचडी कर लेते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि तालीमी तजुर्बा। तालीमी इदारों में तदरीस के लिए तालीमी तजर्बा बहुत ही अहम होता है। आपको अरबी जबान के तालीमी मवाद तैयार करने और तलबा को तालीम देने का तजर्बा हासिल करना होगा ताकि आप अरबी लेक्चरर के तौर पर जो है काबिलियत रखते हो। तो इसके लिए आप किसी भी इदारे में जाकर तदरीस कर सकते हैं, वहां से इजाजत लेकर वहां पे तदरीस करें, वहां से आपको जो है तजुर्बा मिल जाएगा कि किस तरह आपने पढ़ाना है, कैसे जो है कवर करना होता है क्लास वगैरह या क्या चीज जो है कैसे पढ़ानी है। ये तजुर्बा आपके बहुत ही काम आएगा। पांचवा पॉइंट ये तखस्सुस को बढ़ाना। अरबी जुबान के अलावा यानी जिसको स्पेशलिस्ट कहते हैं या स्पेशल प्रोग्राम कहते हैं, अरबी जबान के अलावा आपको अपने तखस्सुसी इल्म को बढ़ाने की कोशिश भी करनी चाहिए। आपको किसी मखसूस अरबी जबान के उसूलों या अरबी अदब या अरब तारीख या दीगर मवाद में तखस्सुस भी होना चाहिए। यानी ये भी आप काम कर सकते हैं। आप सिर्फ अरबी जुबान के अलावा जो है आप अरब के उसूल, अरब के अदबियात जो हैं उसके अलावा आप अरब की तारीख जो है उसमें भी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या तखस्सुस जो है उसकी डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो अरब के रिलेटेड हैं उनसे आप कोई भी डिग्री जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो फिर भी आपके बहुत ज्यादा चांस जो है लेक्चरर के तौर पर बढ़ सकते हैं। साथ आप अगर अरब की तारीख पढ़ लेते हैं तो फिर आपको तारीख में जो है लेक्चरर की असामी पे जो है आसानी होगी। इसी तरह अगर आप सिर्फ अरब के अदबियात पे जो है वो डिग्री ले लेते हैं तो फिर आप अरबी जुबान के टीचर या लेक्चरर बन सकते हैं। ये चीजें आपने जहन में रखनी होगी। ये 5 पॉइंट हैं जो आप अगर इनको मद्देनजर रखते हुए तालीम हासिल करते हैं या काम करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप लेक्चरर, प्रोफेसर या सुपरवाइजर अरबी में इजीली बन सकते हैं और अप्लाई करना और तैनात होना ये भी हो सकता है। तो ये इक़दामात जो हैं आपको यानी ये पॉइंट जो मैंने बताए आपको अरबी लेक्चरर की हैसियत से काम करने की राह में जो है मदद फराहम करेंगे। तालीम, तजुर्बा और तखस्सुस को मिलाकर आप अपने मकाम पर तालीम को और भी काबिल तरक्की बना सकते हैं और तलबा को अरबी ज़बान की तालीम देने में भी मदद फराहम कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप ज़हन में रखिए कि सबसे पहले आपने जो डिग्री हासिल की है यानी दीनी असनाद वो मास्टर के
के आपने इक्वल करवानी है, मास्टर का दर्जा उसमें हासिल करना है। उसके बाद आपने फिर तखस्सुस की तरफ बढ़ना है, स्पेशलिस्ट यानी एमफिल जिसको आप समझे। फिर आपने एमफिल कर लेनी है अगर कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप टीचर मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक जो है टीचिंग का रखते हैं तो फिर उसके लिए मास्टर के बाद आप वो कोर्स टीचर ट्रेनिंग का वो कर लीजिएगा। अगर आप ऊपर लेवल यूनिवर्सिटी लेवल के लेक्चरर की तरफ जाना चाहें तो फिर उसके लिए फिर आप एमफिल कर लीजिएगा। अरबी जबान की किसी भी किसी चीज में तखस्सुस, किसी खास चीज में आप अदब में कर लें, तारीख में कर लें, या बाकी जो अरब में ये चीजें हैं उनमें आप तखस्सुस हासिल कर सकते हैं। इसके बाद चाहें तो पीएचडी कर लें तो फिर आपके चांस ज्यादा होते हैं, तो पीएचडी कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर आपने तजुर्बा वो लाजमी हासिल करना। आपने कहीं पर तदरीस का जो है तजुर्बा ले लेना है, यानी तदरीस करनी है, फिर आपको उसका तजुर्बा मिल जाएगा, फिर आपके लिए आसानी मिल जाए। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको इतनी मालूमात मिल गई होगी कि अरबी लेक्चरर अगर हम लगना चाहें आलिम फाजिल डिग्री करने के बाद तो फिर आपको कौन से जो है काम करना, तो ये आपको मालूमात मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज की समझना है या कोई आप सवाल रखते हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर लाजमी कर दीजिएगा, कम से कम एक दोस्त को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज से फायदा हासिल कर। तो जो मालूमात में शेयर की है इक्वल के हवाले से या बाकी वीडियो जो हैं जो बन चुकी हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए या हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।